نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے خدمت اور قومی کاوش کے 100 دن، قومی یکجہتی وبا کے پھیلاؤ کو روکنے، معیشت کی بحالی کے لیے NCOC کی مؤثر حکمت عملی۔ آج کا دن بہادر ڈاکٹرز، نرسز، طبی عملے، سیکورٹی فورسز اور کورونا سے لڑنے والے تمام افراد کو خراج تحسین پیش کرنے کا دن۔ تمام ہیروز کو قوم اور PTV کا سلام۔ وزیر اعظم عمران خان کا نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کا دورہ۔ NCOC نے کورونا کی روک تھام کے لیے مربوط اقدامات کو یقینی بنانے کے لیے مؤثر کردار ادا کیا۔ سینٹر نے جن مشکل حالات میں کام کیا، قوم کو اس پر فخر ہے۔ عید الاضحیٰ کے دوران SOPs پر سختی سے عمل درآمد کو یقینی بنایا جائے، وزیر اعظم عمران خان۔ اسمارٹ لاک ڈاؤن کی بدولت کورونا کے پھیلاؤ میں کمی ہوئی۔ NCOC نے وبا کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے دن رات کام کیا۔ حکومتی کاوشوں سے کورونا ٹیسٹنگ کی صلاحیت میں اضافہ ہوا۔ وفاقی وزیر اطلاعات سینیٹر شبلی افراز کا تقریب سے خطاب۔ کورونا وائرس سے لڑنے کے لیے طبی استعداد میں مسلسل اضافہ۔ وقت کی قلت کے باوجود ہسپتالوں کا قیام قومی جذبے کا عکاس ہے۔ اسمارٹ لاک ڈاؤن سے وبا پر قابو پانے کے ساتھ کاروباری زندگی رواں دواں ہے۔ وزیر منصوبہ بندی اسد عمر کی میڈیا سے گفتگو۔ معاون خصوصی صحت ڈاکٹر ظفر مرزا کا ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفس اسلام آباد، پاکستان انسٹی ٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز اور CDS اسپتال کا دورہ۔ اسپتالوں میں ڈیوٹی پر معمول طبی عملے کی کورونا وائرس کے خلاف کاوشوں کو سراہا۔ معاون خصوصی نے ڈاکٹرز اور پیرامیڈیکل اسٹاف کو گلدستے، ماسک اور سینیٹائزرز بھی دیے۔ ملک بھر میں کورونا وائرس پر قابو پانے کے لیے بھرپور اقدامات۔ مرض کو شکست دینے والوں کی تعداد میں نمایاں اضافہ۔ 1,25,094 افراد صحتیاب، مزید 3,387 کیسز کی تصدیق۔ مجموعی تعداد 2,25,283 ہو گئی۔ 68 افراد جان کی بازی ہار گئے۔ ہلاکتوں کی مجموعی تعداد 4,619 ہو گئی۔ کورونا وائرس سے نمٹنے کے لیے قومی جذبے کے تحت نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے 100 روز مکمل۔ لاہور، کراچی، پشاور اور کوئٹہ سمیت ملک میں تقاریب۔ وائرس کے خلاف لڑنے والے قومی ہیروز کی جدوجہد کو سلام۔ ٹڈی دل کے خاتمے کے لیے متاثرہ علاقوں میں آپریشن اور سروے کا کام جاری۔ ملک بھر میں 22,92,000 ایکڑ رقبے پر آپریشن اور 9 کروڑ ایکڑ سے زیادہ کا سروے۔ 32 اضلاع کے متاثرہ علاقوں میں 966 ٹیمیں مہم میں شریک۔ نیشنل لوکس کنٹرول سینٹر۔ زراعت کی ترقی اور کسانوں کو سہولتوں کی فراہمی کے لیے 12 نکاتی میمورنڈم تیار۔ پالیسی سے کسانوں کے مسائل حل ہوں گے، زرعی پیداوار میں اضافہ ہوگا، دیہی علاقے ترقی کریں گے۔ اسپیکر قومی اسمبلی اسد کیسر کا اسلام آباد میں کسانوں سے خطاب۔ پہلی بار ریلوے میں انقلابی بہتری۔ ادارے میں کرپشن کرنے والوں کے خلاف نیب سے رجوع کرنے کا فیصلہ۔ ML1 منصوبے سے 1.5 لاکھ افراد کو روزگار ملے گا۔ گزشتہ روز ہونے والا حادثہ کوسٹر ڈرائیور کی غفلت سے پیش آیا۔ وزیر ریلوے شیخ رشید احمد کی لاہور میں میڈیا سے گفتگو۔
شیخوپورہ حادثے میں ہلاک ہونے والے سکھ یاتریوں کی آخری رسومات نوشہرہ کے علاقے خیرآباد کے شمشان گھاٹ میں ادا. سکھ برادری سے تعلق رکھنے والے افراد کی بڑی تعداد میں شرکت. یاتریوں کی میتیں پاک فضائیہ کے C-130 طیارے کے ذریعے لاہور سے پشاور پہنچائی گئیں. مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فوج کی ریاستی دہشت گردی جاری. تازہ کارروائی کے دوران ضلع کلگام میں 2 نوجوانوں کو شہید کر دیا گیا. بلوچستان عوامی پارٹی خواتین ونگ کی جانب سے مقبوضہ کشمیر میں بھارتی مظالم کے خلاف کوئٹہ پریس کلب میں احتجاجی مظاہرات. دنیا بھر میں کرونا وائرس سے متاثرہ افراد کی تعداد 1,12,50,000 سے تجاوز کر گئی. 5,30,000 سے زیادہ اموات. 64 لاکھ کے قریب مریض صحتیاب. امریکہ میں ہلاکتوں کی تعداد 1,32,000 سے بڑھ گئی. برازیل میں 63,300 افراد جان کی بازی ہار گئے. لوک گلوکار علن فقیر کی 20ویں برسی. معروف فنکار کی آواز کا سحر آج بھی برقرار. علن فقیر کے چاہنے والے ان کے گیتوں، کافیوں اور ملی نغموں کے دیوانے. لوک گلوکار کو تمغہ برائے حسن کارکردگی سمیت متعدد ایوارڈ سے نوازا گیا. اور وسٹرشائر میں بایو سیکیور ماحول میں قومی کھلاڑیوں کی بھرپور پریکٹس. تمام کھلاڑی فارم میں ہیں. ٹریننگ سے مزید بہتری آئے گی. انگلینڈ کے خلاف سیریز سے قبل پریکٹس میچز اہم ہیں. ہیڈ کوچ مصباح الحق. السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹیلی ویژن نیوز. خبرنامے کے ساتھ میں ہوں رضوان علی احمد اور میں ہوں صدف علی خان. ہیڈ لائنز آپ نے ملاحظہ کی. خبروں کی تفصیل ایک بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے گا. کورونا کے خلاف قومی عزم کے 100 دن. یکجہتی، ایثار، قربانی، احساس، مسیحائی، خدمت، عزم اور جذبے کا وہ سفر ہے جس نے قوم کو کورونا کے نہ صرف سماجی بلکہ معاشی اثرات سے بھی بچایا اور وسائل کی کمی کے باوجود اقوام عالم کے مقابلے میں حالات کو قابو میں رکھا. لیکن یاد رہے، وبا ابھی ختم نہیں. اس لیے ہمیں احتیاط کا سفر جاری رکھنا ہے. ماسک لگائیں، ہاتھ دھوئیں، سینیٹائز کریں، فاصلہ رکھیں اور SOPs پر سختی سے عمل کریں. احتیاط ضروری ہے زندگی چلانے کے لیے، زندگی بچانے کے لیے. حکومت پاکستان. تم مسیحا ہو اس قوم کے، ہمیں تم سے پیار ہے.
कोरोना वायरस से निपटने के लिए कौमी खिदमत में मसरूफ नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर को कायम हुए 100 दिन हो गए हैं। इन 100 दिनों में वबा से निपटने, कौमी यकजहती, बीमारी के फैलाव को रोकने और मईशत को बहाल रखने के लिए एनसीओसी ने मौसर हिकमत अमली वज़ा की। आज बहादुर डॉक्टर्स, नर्सेस, पैरामेडिक्स, सिक्योरिटी फोर्सेस और कोरोना से लड़ने वाले तमाम अफराद को खिराज तहसीन पेश करने का दिन है। ये अज़्म हिम्मत और जज्बे की एक दास्तान है। कोरोना के खिलाफ जंग में हर पाकिस्तानी एक हीरो है। आज पूरी कौम इन तमाम हीरोज को सलाम पेश करती है। नाज़रीन, आपको बताते चले कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने हिदायत की है कि ईद उल अज़हा के दौरान भी तयशुदा SOPs पर सख्ती से अमल दरामद यकीनी बनाया जाए। इस्लामाबाद में एनसीओसी के क़याम के 100 रोज मुकम्मल होने पर इदारे के दौरे के मौके पर गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि स्मार्ट लॉकडाउन की हिकमत अमली पर अमल दरामद के लिए तमाम मतलूबा इंतजामी इक़दाम उठाए जाएं और ईद उल अज़हा के दौरान बीमारी की रोकथाम के लिए अवाम में आगाही मुहिम को भी जारी रखा जाए। वज़ीर आज़म ने कहा कि एनसीओसी ने सख्त सूरत हाल में हमारी बेहतर रहनुमाई की और जिन मुश्किल हालात में काम किया, कौम को इस पर फख्र है। वज़ीर आज़म ने कोरोना की रोकथाम के लिए नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर की टीम की काविशों को सराहा। उन्होंने कहा कि सूरत हाल की रोजाना निगरानी से सेहत के निज़ाम की इस्तेदाद कार बढ़ाने, काबिल एतमाद डेटाबेस के क़याम, वसाइल के बेहतर इंतजाम और मुनासिब SOPs की तश्कील में इदारे ने मौसर किरदार अदा किया। वज़ीर आज़म कोरोना की सूरत हाल पर तफसीली ब्रीफिंग भी दी गई। ब्रीफिंग में बताया गया कि IMF के आलमी इक़्तिसादी आउटलुक के मुताबिक पाकिस्तान दुनिया के 29 मुल्कों में शामिल है जो वबा के बावजूद इक़्तिसादी शरह-ए-नमू को -0.4 से +1.1 पर लाया, जबकि खित्ते के दूसरे मुल्कों के मुकाबले में पाकिस्तान की बरामदात में बेहतरी आई। वज़ीर आज़म के दौरे के मौके पर वफाकी वज़रा, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा, आला हुकाम भी मौजूद थे। इस मौके पर सूबों ने भी वीडियो लिंक के जरिए नुमाइंदगी की। वज़ीर आज़म ने तमाम महकमों और इदारों, चारों सूबों, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में काम करने वाले हेल्थ वर्कर्स और इंतजामिया के किरदार को सराहा। वज़ीर आज़म इमरान खान ने मरज़ की रोकथाम के लिए डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, हंगामी इमदाद फराहम करने वालों और सफ़े अव्वल में काम करने वालों को भी शानदार खिराज तहसीन पेश किया। वज़ीर आज़म ने SOPs पर अमल करने और चैलेंज का मुकाबला करने में कौम के किरदार की भी तारीफ की। वज़ीर इत्तलात सेनेटर शिबली फराज ने कहा है कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने कोरोना के फैलाव को रोकने के लिए स्मार्ट लॉकडाउन की हिकमत अमली अपनाई, जिसकी वजह से कोरोना वायरस के केसेस में कमी आई। इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब करते हुए वफाकी वज़ीर ने कहा कि SOPs पर अमल दरामद करने पर आवाम के शुक्रगुजार हैं। कोरोना अभी मुकम्मल तौर पर खत्म नहीं हुआ, लिहाजा खतरा अब भी मौजूद है। उन्होंने कहा कि कोरोना के खिलाफ तिब्बी अमले और डॉक्टर्स सफ़े अव्वल पर हैं। हुकूमती कोशिशों से कोरोना टेस्टिंग की सलाहियत को बढ़ाया गया। हमारी हुकूमत ने अपने एहसास प्रोग्राम के जरिए जिस तरह उन गरीब लोगों के डोर स्टेप तक पैसे पहुंचाए और उनको जो ये सख्त खड़ी है उसमें से निकलने के लिए एक कोशिश की, जिसकी कि सारी दुनिया में पजीराई हो रही है, जिस शफाफियत के साथ और जिस मेरिट की बेस पे ये पैसे डिस्ट्रीब्यूट किए गए, जो कि 150 अरब के करीब अब पहुंच चुके हैं। सेनेटर शिबली फराज ने पोलियो क्लिनिक इस्लामाबाद का दौरा किया और कोरोना वबा में फ्रंट लाइन के हीरोज का किरदार अदा करने वाले डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ को खिराज तहसीन पेश किया। इस मौके पर वज़ीर इत्तलात ने डॉक्टर्स और तिब्बी अमले में मास्क और सैनिटाइजर्स भी तकसीम किए। नाज़रीन, आपको बताते चलें कि वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी असद उमर ने कहा है कि कोरोना वायरस से लड़ने के लिए तिब्बी इस्तेदादकार में मुसलसल इजाफा कर रहे हैं। नए अस्पतालों का कयाम कौमी जज्बे का अक्कास है। इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वफाकी वज़ीर ने कहा कि तिब्बी अमले ने कौमी जज्बे के तहत कोरोना वायरस का मुकाबला किया। स्मार्ट लॉकडाउन की हिकमत अमली से वबा पर काबू पाने के साथ कारोबार जिंदगी रवां दवा है। उन्होंने कहा कि इस्लामाबाद में कायम किया जाने वाला 250 बिस्तरों पर मुश्तमिल ये नया अस्पताल वबाई अमराज की रोकथाम के लिए अहम किरदार अदा करेगा। सिर्फ 40 दिन के अंदर ये फैसिलिटी जो आप देख रहे हैं इसको मुकम्मल किया गया और ये जो पूरी इस अस्पताल की कहानी है वो एक कौमी जज्बे को रिफ्लेक्ट करती है। इस्लामाबाद के अंदर जो एग्जिस्टिंग हॉस्पिटल्स हैं, वहाँ टिम्स के अंदर, पॉली क्लिनिक के अंदर, CDA में, फेडरल में, तमाम में कैपेसिटी का इजाफा किया गया है। सिर्फ पिछले 2 हफ्ते के अंदर 189 बेड्स का इजाफा किया गया था।
اس سے پہلے وفاقی وزیر اسد عمر نے قدرتی آفات کے قومی ادارے کے چیئرمین لیفٹیننٹ جنرل محمد افضل کے ہمراہ اسپتال کے مختلف شعبوں کا دورہ کیا اور وہاں فراہم کی گئی جدید ترین سہولتوں کا جائزہ لیا۔ یہ اسپتال چین کے مالی تعاون سے صرف 40 دن میں تعمیر کر کے فعال کر دیا گیا ہے۔ خبروں کا سلسلہ جاری رہے گا۔ یہاں آپ کو بتاتے چلے کہ راولپنڈی اسلام آباد میں اذان عشاء کا وقت ہوا چاہتا ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله زونگ 4G موبائل براڈ بینڈ سے رہیں اب سب کنیکٹڈ۔ فرینڈز یا فیملی سے کرنی ہو بات یا پھر ہو ورک فرام ہوم اور آن لائن کلاسز، اب ماہانہ 150 GB انٹرنیٹ ملے صرف 2500 روپے میں۔ زونگ 4G۔ کورونا کے خلاف قومی عزم کے 100 دن، یکجہتی، ایثار، قربانی، احساس، مسیحائی، خدمت، عزم اور جذبے کا وہ سفر ہے جس نے قوم کو کورونا کے نہ صرف سماجی بلکہ معاشی اثرات سے بھی بچایا اور وسائل کی کمی کے باوجود اقوام عالم کے مقابلے میں حالات کو قابو میں رکھا۔ لیکن یاد رہے، وبا ابھی ختم نہیں، اس لیے ہمیں احتیاط کا سفر جاری رکھنا ہے۔ ماسک لگائیں، ہاتھ دھوئیں، سینیٹائز کریں، فاصلہ رکھیں اور SOPs پر سختی سے عمل کریں۔ احتیاط ضروری ہے زندگی چلانے کے لیے، زندگی بچانے کے لیے۔ حکومت پاکستان۔ ناظرین، بلٹن میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ خبروں سے خبروں کے سلسلے کو جوڑتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ کورونا وائرس سے نمٹنے کے لیے قومی جذبے کے تحت نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے 100 روز مکمل ہونے پر معاون خصوصی صحت ڈاکٹر ظفر مرزا نے ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفس اسلام آباد، پاکستان انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز اور CDA ہسپتال کا دورہ کیا اور وہاں فراہم کی گئی جدید ترین سہولیات کا جائزہ لیا۔ اس موقع پر معاون خصوصی صحت ڈاکٹر ظفر مرزا نے کہا کہ ڈاکٹرز اور پیرامیڈیکل اسٹاف ہمارے ہیروز ہیں۔ NCOC کے بننے کے بعد پاکستان کی جو کرونا وائرس کی بیماری کے پھیلاؤ کے حوالے سے جو کام تھا اس میں بہت زیادہ امپروومنٹ ہوئی۔ ڈاکٹرز، نرسز، پیرامیڈکس اور اپنے تمام فرنٹ لائن ہیلتھ ورکرز اپنے آپ کو رسک میں ڈال کے انہوں نے جس طریقے سے کرونا وائرس کے مریضوں کی نگہداشت کی ہے اس کا تو شکریہ پوری قوم نہیں ادا کر سکتی۔
معاون خصوصی ڈاکٹر ظفر مرزا نے اسپتالوں میں ڈیوٹی پر مامور طبی عملے کی کورونا وائرس کے خلاف کاوشوں کو سراہا. معاون خصوصی نے ڈاکٹرز اور پیرامیڈیکل اسٹاف کو گلدستے، ماسک اور سینیٹائزرز بھی دیے. پاکستان میں تعینات ایرانی سفیر سید محمد علی حسینی نے اپنے ٹویٹ میں کہا ہے کہ ایرانی وزیر خارجہ جواد ظریف نے اپنے ہم منصب شاہ محمود قریشی کی طبیعت کے بارے میں دریافت کرتے ہوئے ان کی کورونا وائرس سے جلد صحتیابی کی دعا کی ہے. ناظرین، کچھ بات کریں کورونا وائرس کی. آپ کو بتائیں کہ گزشتہ 24 گھنٹے میں پاکستان میں مزید 3,387 افراد میں کورونا وائرس کی تصدیق ہوئی ہے، جبکہ 68 افراد جان کی بازی ہار گئے. ہلاکتوں کی مجموعی تعداد 4,619 ہو گئی ہے. NCOC کے مطابق کورونا وائرس سے متاثرہ افراد کی تعداد 2,25,283 ہے. کورونا وائرس سے صحت یاب ہونے والوں کی تعداد متاثرہ مریضوں سے کہیں زیادہ ہے. اب تک 1,25,094 افراد صحت یاب ہو چکے ہیں. پنجاب میں متاثرہ افراد کی تعداد 80,297، سندھ میں 90,721، بلوچستان میں 10,717، خیبر پختونخوا میں 27,506، اسلام آباد میں 13,292، گلگت بلتستان میں 1,536، جبکہ آزاد کشمیر میں متاثرہ افراد کی تعداد 1,214 ہے. پنجاب حکومت نے صوبے کے انفراسٹرکچر کی پائیدار ترقی کے لیے اکنامک پلان مرتب کرنے کا فیصلہ کیا ہے. شہروں میں 79 ارب روپے سے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت 10 میگا پروجیکٹس مکمل کیے جائیں گے. وزیر اعلیٰ پنجاب کی صدارت میں کابینہ کمیٹی انسداد کرونا اور دیگر مصروفیات کے حوالے سے دیکھتے ہیں طاہر جعفری کی رپورٹ. پنجاب کے وزیر اعلیٰ سردار عثمان بزدار کی زیر صدارت کابینہ کمیٹی برائے انسداد کرونا کا اجلاس ہوا. اجلاس میں کرونا وبا کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے اقدامات کا جائزہ لیا گیا. وزیر اعلیٰ نے اسمارٹ لاک ڈاؤن پالیسی پر اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ بروقت اقدامات سے مریضوں کی تعداد میں کمی ہوئی. انہوں نے کہا کہ مریضوں کو بہترین طبی سہولیات فراہم کی جا رہی ہیں. وزیر اعلیٰ پنجاب نے عید الاضحیٰ سے 15 روز قبل مویشی منڈیاں لگانے اور SOPs مرتب کرنے کی ہدایت کی ہے. پنجاب پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ اتھارٹی بورڈ کا اجلاس ہوا. اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ نے کہا کہ پنجاب میں پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت 79 ارب روپے سے 10 میگا پروجیکٹس کا آغاز ہوگا. پنجاب حکومت نے گزشتہ مالی سال میں محکمہ ہائی ویز کی جانب سے سڑکوں کی مینٹیننس اور دیگر اسکیموں کی انکوائری کے احکامات جاری کر دیے ہیں. ایوان وزیر اعلیٰ سے جاری کردہ مراسلے کے مطابق وزیر اعلیٰ انسپیکشن ٹیم سڑکوں کی مرمت میں قواعد و ضوابط، ٹینڈرز کے طریقہ کار اور فنڈز کے استعمال سمیت تمام پہلوؤں کا جائزہ لے کر وزیر اعلیٰ کو رپورٹ پیش کرے گی. وزیر اعلیٰ سردار عثمان بزدار نے کہا ہے کہ ترقیاتی اسکیموں میں شفافیت پر سمجھوتا نہیں کیا جائے گا. دوسری جانب وزیر اعظم کے مشیر برائے امور نوجوانان عثمان ڈار نے لاہور چیمبر آف کامرس میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ کامیاب نوجوان پروگرام کے لیے 10 لاکھ درخواستیں موصول ہوئیں، جن میں سے 25,000 کو قرض کی ادائیگی کا سلسلہ جاری ہے. عثمان ڈار نے کہا کہ نوجوانوں کے لیے شاپس آن ویل پروگرام متعارف کروانے جا رہے ہیں. صوبائی وزیر صحت ڈاکٹر یاسمین راشد نے پنجاب بلڈ ٹرانسفیوژن اتھارٹی کو اثر نو فعال کرنے کے حوالے سے اجلاس میں کہا ہے کہ غیر قانونی بلڈ بینکس کے خلاف سخت کارروائی عمل میں لائی جائے گی. ڈاکٹر یاسمین راشد نے ایکسپو سینٹر میں قائم کورونا اسپتال کا دورہ کیا اور ہائی ڈیپینڈنسی یونٹ سمیت مریضوں کو دی جانے والی دیگر سہولیات کا جائزہ لیا. محکمہ صحت پنجاب نے عید الاضحیٰ پر مویشی منڈیاں لگانے کے حوالے سے SOPs جاری کر دیے ہیں، جس کے مطابق مویشی منڈیاں شہری آبادی سے کم از کم 2 کلومیٹر دور کھلے مقامات پر لگائی جائیں گی. بچوں اور بزرگوں کا داخلہ ممنوع ہوگا. ماسک، سینیٹائزرز اور سماجی فاصلے کو یقینی بنانے سمیت داخلی اور خارجی راستے علیحدہ ہوں گے. طاہر جعفری، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، لاہور. ناظرین، آپ کو بتاتے چلے کہ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے قیام کو 100 روز مکمل ہونے پر خیبر پختونخوا میں بھی ڈاکٹروں اور پولیس کے ساتھ ساتھ زندگی کے مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے رضاکاروں کے اعزاز میں پشاور میں تقریب ہوئی. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا تقریب کے مہمان خصوصی تھے. رپورٹ کریں گے اما دوان. CM ہاؤس پشاور میں ہونے والی تقریب میں کورونا وائرس کے خلاف جدوجہد میں حکومت کے شانہ بشانہ کام کرنے والے سرکاری محکموں، رضاکاروں اور پولیس اور فوج کے نمائندوں کے علاوہ ان ڈاکٹروں اور نرسز نے بھی شرکت کی، جنہوں نے دن رات نہ صرف کام کیا بلکہ ان SOPs پر بھی عمل درآمد کروایا، جن کی بدولت کورونا وائرس سے عوام کو آگاہی حاصل ہوئی. وزیر اعلیٰ محمود خان تقریب کے دوران سٹیج سے اٹھ کر عام نشستوں پر بیٹھ گئے تاکہ ان لوگوں کو خراج تحسین پیش کیا جا سکے جنہوں نے بحران کے اس وقت میں حکومت کا ہاتھ بٹایا. ایک تو اویئرنیس کی وجہ سے جو ہم نے کیمپیننگ کی تھرو فرنٹ لائن ورکرز، تھرو گراس روٹ لیول، اس کی وجہ سے کافی لوگوں میں اویئرنیس آئی. لوگوں میں اتنے ویئرس آ گئے ہیں کہ انہوں نے وہ جو ہم شروع سے کہہ رہے تھے کہ سوشل ڈسٹینسنگ، ماسک اور ان چیزوں کا خیال رکھے تو وہ اب رکھنے لگے ہیں. تو اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ انشاءاللہ اب وہ ڈکلائن کی طرف جا رہا ہے. الحمدللہ ہمارے جو بڑھتے ہوئے کیسز تھے وہ کم سے کم سطح پہ انشاءاللہ آنے لگے ہیں اور انشاءاللہ کچھ دنوں میں اگر اسی طرح یہ احتیاطی تدابیر اور یہی سماجی رویوں میں اسی طرح کا احتیاط جاری رہا تو انشاءاللہ وہ دن دور نہیں کہ جب ہم اس پہ مکمل طور پہ قابو پا لیں گے. ڈور ٹو ڈور ہم نے کیمپین چلایا سوشل ڈسٹینس کا،
इसी तरह हमने मास्क सैनिटाइजर का। तकरीब से खिताब करते हुए वजीर आला महमूद खान ने म्यूनिसिपल वर्कर्स, फायर फाइटर्स और जिले इंतजामिया का शुक्रिया अदा किया, जिन्होंने कोरोना को काबू से बाहर होने से रोकने के लिए अपनी तमाम सलाहियतें सर्व की। वजीर आला ने वीडियो लिंक पर डॉक्टर जावेद शहीद के अहले खाना समेत उन अफराद से भी बातचीत की जिन्होंने कोरोना से लड़ते लड़ते अपनी जान दे दी। आखिर में वजीर आला ने रजाकारों में एजाजी सर्टिफिकेट्स तकसीम किए। इससे पहले वजीर सेहत तैमूर सलीम झगड़ा ने खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी के स्टाफ और अमले के एजाज में तकरीब में शिरकत की और सूबे में कोरोना टेस्टिंग के लिए KMU की खिदमत को सराहा। आज का दिन उन तमाम लोगों की हौसला अफजाई का दिन है जिन्होंने हुकूमत के इक़दामात पर एक टीम की तरह मिलकर काम किया। अमाद अवान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, पेशावर। सिंध के वज़ीर आला सैयद मुराद अली शाह ने कहा कि सिंध में कोरोना वायरस के मरीजों की रिकवरी की शरह 56% हो गई है, जो खुशाइंद है। कराची में कोरोना वायरस टास्क फोर्स इजलास की सदारत करते हुए वज़ीर आला सिंध ने कहा कि सूबाई हुकूमत ने हेल्थ केयर सिस्टम को बेहतर करके कोरोना वायरस से अमवात की शरह को काबू किया है और मरीजों की बहाली बेहतर बनाई गई है। इजलास में बताया गया कि सिंध में कोरोना वायरस से मरने वाले अफराद की शरह 1.6% है। वज़ीर आला ने कहा कि सिंध में कोरोना के फील्ड अस्पतालों की तादाद बढ़ाई गई है। वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल खान का कहना है कि हुकूमत सूबे में सेहत के निज़ाम की बेहतरी के लिए जामे प्लान बना रही है। कोयटा के फातिमा जनाह अस्पताल में कोयटा अज़्म व हिम्मत के 100 दिन की मुनासबत से मुनाकिदा तकरीब से खिताब के दौरान मीर जाम कमाल खान ने कहा कि डॉक्टर्स, तिब्बी अमले और कोयटा इंतजामिया की जिम्मेदारियां काबिल सताइश हैं। वज़ीर आला बलूचिस्तान ने कहा कि आज भी कोरोना के बारे में लोगों में मालूमात कम है। वज़ीर खजाना बलूचिस्तान मीर ज़हूर बुलेदी ने कहा कि हुकूमत ने सेहत का बजट बढ़ाकर 32 अरब रुपए कर दिया है। निगरान वज़ीर आला मीर अफजल ने कहा है कि पाक फौज, डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ और इंतजामिया ने गिलगित बल्तिस्तान में कोरोना से बचाव और रोकथाम के हवाले से काबिल तारीफ खिदमात सर अंजाम दी हैं। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के क़याम के 100 दिन मुकम्मल होने के हवाले से तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि फौरी इक़दामात की वजह से कोरोना वायरस से बचाव और रिकवरी के हवाले से गिलगित बल्तिस्तान मिसाली सूबा बन चुका है। तमाम सूबों से कोरोना के मरीजों की रिकवरी की शरह गिलगित बल्तिस्तान में सबसे ज्यादा है। चेयरमैन सीपेक अथॉरिटी आसिम सलीम बाजवा ने कहा है कि गवादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट की तामीर का काम जारी है। वज़ीर आज़म की हिदायत पर गवादर के तमाम मंसूबे मुकम्मल करने के लिए पुरअज़्म हैं। समाजी राब्तों की वेबसाइट पर अपने पैगाम में उन्होंने कहा कि मेगा एयरपोर्ट की तामीर पर $230 मिलियन लागत आएगी। उन्होंने मजीद कहा कि मंसूबा गवादर पोर्ट और शहर के लिए अहम साबित होगा। टिड्डी दल के खात्मे के लिए मुतासरा इलाकों में ऑपरेशन और सर्वे का काम जारी है। नेशनल लोकस कंट्रोल सेंटर के मुताबिक मुल्क भर में 22,92,000 एकड़ रकबे पर ऑपरेशन और 9 करोड़ एकड़ से ज्यादा का सर्वे किया जा चुका है। 32 अजला के मुतासरा इलाकों में 966 टीमें मुहिम में हिस्सा ले रही हैं। टिड्डी दल के खिलाफ ऑपरेशन में विफाकी, सूबाई हुकूमतें, आर्मी और दूसरे मुतल्लिका इदारे शरीक हैं। बाज़ इलाकों में फजाई स्प्रे किया जा रहा है। स्पीकर कौमी असेंबली असद कैसर ने कहा है कि ज़राई टास्क फोर्स ने ज़राअत की तरक्की और किसानों की सहूलतों की फराहमी के लिए 12 निकाती मेमोरेंडम तैयार किया है। तफसीलात से आगाह करेंगे राना इफ्तिखार अहमद। इस्लामाबाद में किसानों से खिताब करते हुए स्पीकर असद कैसर ने कहा कि ज़राई टास्क फोर्स ने पॉलिसी तैयार की है जिससे किसानों के मसाइल हल होंगे। डे टू डे जो इश्यूज आते हैं फार्मर्स के और खासकर ग्रोवर्स के, पंजाब में हो, बलूचिस्तान में हो या सिंध में हो या खैबर पख्तूनख्वा में हो, अब उसको इमीडिएटली टेकअप करते हैं। यानी आम के पास जो है ना एक ऐसा फसल है, ऐसा पल है कि वो बहुत जल्द जो है खराब हो जाता है। इसके लिए स्पेशल इनिशिएटिव दिया गया, उसके लिए पाकिस्तान बॉर्डर पे फैसिलिटी दी गई। काटन के हवाले से हम काफी काम कर रहे हैं। हमने तमाम स्टेक होल्डर को और खासकर फार्मर्स को भी हमने इसमें शामिल किया है ताकि फार्मर्स के मशवरे से हम कोई पॉलिसी बना सके। रुकने कौमी असम्बली शानदाना गुलजार ने कहा कि ज़राअत सूबाई मामला है, इसके बावजूद विफाकी हुकूमत इस शोबे की तरक्की के लिए भरपूर इक़दाम कर रही है। हम तकरीबन एक मुस्बित और जामे प्रोग्राम पे काम कर रहे हैं जिसमें 7 साल, 3 साल और 1 साल का इंशाल्लाह रिवर्स में हमने काश्तकार की तमाम जरूरतों को देखते हुए उस पे काम होगा, इस प्रोग्राम बनेगा और वही यही कमेटी इंशाल्लाह पास करवाएगी। किसानों के नुमाइंदों ने ज़राअत की तरक्की के लिए दिलचस्पी लेने पर विफाकी हुकूमत का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि किसानों के मसाइल हल होने से न सिर्फ ज़राई पैदावार में इजाफा होगा बल्कि देही इलाके भी तरक्की करेंगे। राना इफ्तिखार अहमद,
पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, इस्लामाबाद। रेलवे के वजीर शेख रशीद अहमद ने कहा है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की क़यादत में अवामी फलाह व बहबूद के काम जारी हैं, जबकि माजी के हुक्मरानों ने अवाम को मायूस किया। उन्होंने कहा कि ऑपोजिशन नालायक है और करप्ट है, ये हुकूमत का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। तफसीलात ताहिर क्लासरा से। शेख रशीद अहमद ने कहा कि अपोजिशन की करप्शन कोई ढकी छुपी बात नहीं है, ये लोग रंगे हाथों पकड़े जा चुके हैं। वो लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। ये अपोजिशन नालायक है, करप्ट है, मनी लॉन्ड्रर है। इमरान खान बहुत मेहनत कर रहा है, जितनी अल्लाह ने उसको हिम्मत दी है वो इस हुकूमत को चलाने की कोशिश कर रहा है। रेलवे के हवाले से गुफ्तगू करते हुए शेख रशीद अहमद ने कहा कि ये साल रेलवे की तरक्की और इनकलाब का साल है। उन्होंने कहा कि 1.5 लाख अफराद को मेरिट की बुनियाद पर नौकरियां देंगे। वफाकी वजीर ने कहा कि जिन लोगों ने रेलवे को नुकसान पहुंचाया है उनके एहसाब का वक्त आ गया है। ये अल्लाह ने हमसे 2006-07 में काम लिया था कि हमने ML1 पे दस्तखत किए थे और ये लोग कमीशनें खा रहे थे, इंजनों की कमीशनें खा रहे थे, ऊपर वैगनों की कमीशनें खा रहे थे। तमाम केसेस जो है मैं नैब को लिखने लगा हूं कि तमाम रीओपन किए जाएं जो कमीशन के केस हैं। शेख रशीद अहमद ने कहा कि गुज़श्ता रोज होने वाले हादसा कोस्टर ड्राइवर की गफलत की वजह से पेश आया। इससे कबल वफाकी वजीर रेलवे शेख रशीद अहमद ने कोरोना से सेहत याब होने के बाद रेलवे हेडक्वार्टर लाहौर में इजलास की सदारत की। वफाकी वजीर को गुज़श्ता रोज शेखोपुरा में होने वाले अफसोसनाक हादसे की इब्तदाई इंक्वायरी रिपोर्ट पर रेलवे अफसरान की जानिब से तफसीली ब्रीफिंग दी गई। ताहिर क्लासरा, PTV न्यूज, लाहौर। और यहाँ आपको बताएं कि गुज़श्ता रोज शेखोपुरा ट्रेन हादसे में हलाक होने वाले सिख यात्रियों की आखिरी रसूमात नौशहरा के इलाके खैराबाद के शमशान घाट में अदा की गयी। मजीद तफसीलात बताएंगे पेशावर से मुदस्सिर खान। ट्रेन हादसे में जब हक होने वाले सिख यात्रियों की मैयत सख्त सिक्योरिटी में खैराबाद शमशान घाट लाई गई, जहां आखिरी रस्मात सिख मजहब के मुताबिक अदा की गई। हादसे में जब हक होने वाले सिख यात्रियों की मैयत पाक फजाइया के 730 के जरिए लाहौर से पेशावर पहुंचाई गई। एयरपोर्ट से एम्बुलेंसेज के जरिए मैयतों को गुरुद्वारा बाई जोगा सिंह, मोहल्ला जोगन शाह डबगरी मुंतकिल किया गया। मुख्तलिफ शुबा हाय जिंदगी से ताल्लुक रखने वाले अफराद ने गुरुद्वारा बाई जोगा सिंह में सिख कम्युनिटी के अफराद से इस हादसे पर ताज़ियत का इजहार किया। वज़ीर आला महमूद खान की हिदायत पर सूबाई मुशीर इत्तलात अजमल वजीर ने मोहल्ला जोगनशाह में वाक़े गुरुद्वारा का दौरा किया और ट्रेन हादसे में जमा हक होने वाले सिख यात्रियों की लवाहिकीन से ताज़ियत की। उन्होंने कहा कि इस अफसोसनाक वाक़े ने सबको रंजीदा किया है। सूबाई हुकूमत और सूबे के अवाम सिख भाइयों के दुख में बराबर के शरीक हैं। खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला महमूद खान और गवर्नर शाह फरमान ने शेखपुरा ट्रेन हादसे में होने वाले कीमती इंसानी जानों के ज़िया पर गहरे रंज और गम का इजहार किया। मुदस्सिर खान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, पेशावर। पंजाब के गवर्नर चौधरी मोहम्मद सरवर वफाकी वजीर शफकत महमूद के घर गए और उनकी वालदा के इंतकाल पर इजहार ताज़ियत किया। गवर्नर पंजाब ने मरहूमा के ईसाल सवाब के लिए फातिहा खानी की और मरहूमा के दर्जात की बुलंदी और सोगवार खानदान के लिए सब्र जमील की दुआ की। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौजियों ने अपनी ताज़ा रियासती दहशतगर्दी की कार्रवाई में जिला कुलगाम में मुहासरे और तलाशी की कार्रवाई के दौरान 2 कश्मीरी नौजवानों को शहीद कर दिया। KMS के मुताबिक इससे कबल इसी इलाके में एक हमले में एक जूनियर कमीशन ऑफिसर समेत भारतीय फौज के 3 एहलकार जख्मी हुए थे। कश्मीर मीडिया सर्विस की रिसर्च सेक्शन की एक तज्जियाती रिपोर्ट में कहा गया है कि तनाज़ा कश्मीर मकबूजा कश्मीर में इंसानी जिंदगियों पर बहुत भारी साबित हो रहा है और इस तनाज़े ने गुज़श्ता 7 दिहाइयों के दौरान लोगों की जिंदगी के हर पहलू पर मनफी असरात मुरतब किए हैं। मकबूजा कश्मीर दुनिया का वाहिद खित्ता है जहां लोग इंसानी हुकूक के बगैर जिंदगी बसर कर रहे हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारतीय फौजियों और पुलिस एहलकारों की तरफ से मकबूजा इलाके में कत्ल, गिरफ्तारियां, तशद्दुद, अमलाक की तबाही और खवातीन की आबरूरेजी मामूल बन चुका है। गुज़श्ता माह जिला गांधरबल में लापता होने वाले कश्मीरी रिसर्च स्कॉलर हिलाल अहमद के अहल खाना ने श्रीनगर में एहतजाजी मुजाहरा किया। मुजाहिरीन ने हाथों में प्लेकार्ड्स उठा रखे थे जिन पर लिखा था कि हिलाल अहमद को भारतीय फौजियों ने जबरी तौर पर लापता कर दिया है। काबिल हुक्काम ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करने पर एक सरकारी मुलाजिम ताहिर नज़ीर शाला के खिलाफ बगावत का मुकदमा दर्ज कर लिया है। हुर्रियत रहनुमा ख्वाजा फिरदौस और तहरीक वहदत इस्लामी ने सोपुर कस्बे में भारतीय फौजियों के हाथों एक शहरी बशीर अहमद खान के वहशियाना कत्ल की शदीद मजम्मत की है। भारतीय फौजियों ने बुध के रोज सोपुर कस्बे में बशीर अहमद खान को कार से घसीट कर बाहर निकाला और कमसिन पोते के सामने गोली मारकर शहीद कर दिया।
बलूचिस्तान अवामी पार्टी खवातीन विंग की जानिब से मकबूजा कश्मीर में भारतीय अफवाज के मुजालिम और कराची स्टॉक एक्सचेंज में दहशतगर्दी के खिलाफ कोयटा प्रेस क्लब में एहतजाजी मुजाहरा और रैली का इनेकाद किया गया। इस मौके पर मुकर्रीरीन ने कहा कि भारत मकबूजा कश्मीर में मासूम कश्मीरियों की नस्ल कुशी कर रहा है। उन्होंने मुतालबा किया कि आलमी बरादरी भारतीय मसालिम का नोटिस ले। तहरीक कश्मीर बरतानिया की जानिब से बैनुल अक़वामी कश्मीर वर्चुअल यूनिवर्सिटी का इनेकाद किया गया। सदर आजाद जम्मू कश्मीर ने वर्चुअल कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि मकबूजा वादी को इंसानियत से उस बहरान का सामना है। भारत ने आर्टिकल 370 और 35 से मनसूख करके जम्मू कश्मीर के लोगों को उनके आबाई वतन में असीर बना दिया है। कॉन्फ्रेंस में शरीक बरतानवी और यूरोपीय पार्लियामेंट के अरकान समेत कश्मीरी रहनुमाओं ने मकबूजा वादी में भारतीय जुल्म और बर्बरियत की मजम्मत करते हुए कश्मीरियों को हक खुद इरादियत देने का मुतालबा किया। कारोबार पर नजर डालें। आपको बताएं कि गुज़िश्ता कारोबारी हफ्ते के पहले दिन दहशतगर्दी के नाकाम हमले के बावजूद पूरे हफ्ते पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी का रुझान देखा गया। गुज़िश्ता 5 दिनों की स्टॉक मार्केट की कारोबारी सरगर्मियों का जायजा लिया है। ज़िशान अहमद खान ने अपनी इस रिपोर्ट में, आइए देखते हैं। गुज़िश्ता हफ्ते के कारोबारी दिन 29 जून के आगाज पर दहशतगर्दों के नाकाम हमले के बावजूद भी पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी रही। कानून नाफिज करने वाले इदारों की जानिब से दहशतगर्दों को कैफरे किरदार तक पहुंचाने के बाद सरमायाकारों का एतमाद मजीद बहाल हुआ और 100 इंडेक्स में बुलंदी का रुझान बरकरार रहा। फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स जो है उन्होंने इरादा किया एक बार फिर पाकिस्तान में आने के लिए। उसकी वजह ये थी कि उन्होंने ये देखा इस पूरे हफ्ते में कि पाकिस्तान की जो आर्म फोर्सेस है, जो सिक्योरिटी है, वो बहुत ही बेहतरीन है। इसे किसी किस्म का अंदरूनी या बैरूनी कोई खतरा नहीं है। दूसरी जानिब इनकी पॉलिसीज जितनी भी आ रही हैं वो बेहतरी की तरफ आ रही है। कारोबारी हफ्ते के आगाज के साथ ही पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में 100 इंडेक्स 242 पॉइंट्स के इजाफे के साथ 34,181 पर बंद हुआ। दूसरे दिन इंडेक्स ने 34,424 की हद अबूर की और 34,421 पर बंद हुआ। तीसरे दिन 100 इंडेक्स में 467 पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। कारोबारी हफ्ते के चौथे रोज भी 100 इंडेक्स में मुसलसल तेजी रही, जबकि कारोबारी हफ्ते के आखिरी दिन 100 इंडेक्स 35,105 की सतह पर पहुंचकर 35,051 पर बंद हुआ। 100 इंडेक्स में 73 पॉइंट्स का इजाफा देखा गया। ज़िशान अहमद खान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, कराची। रुख करेंगे कराची का, जहां होने वाली तवील और गैर एलानिया लोड शेडिंग से लोग अपने कारोबार की वजह से परेशान हैं। वहीं बिजली की बंदिश से बच्चों की ऑनलाइन तालीम भी शदीद मुतासिर हो रही है। हसन नासिर सिद्दीकी रिपोर्ट कर रहे हैं। शहर कायद में बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग ने यहाँ के बासियों को एक अजाब में मुब्तला कर दिया है। शदीद गर्मी में 6 से 12 घंटे की बिजली की बंदिश से लोग बिलबिला उठे हैं। इधर लाइट नहीं होती, काम नहीं होता, और रात में जो है ना घर में जाते हैं वहाँ भी लाइट नहीं होती, वहाँ भी जो है ना परेशानी होती है। लाइटें जा भी रही हैं, उसके बाद भी बिल डबल आ रहा है। बिजली की तवील गैर एलानिया लोड शेडिंग के बायस तलबा भी सख्त परेशान नजर आते हैं। उनका कहना है कि लोड शेडिंग से उनकी ऑनलाइन क्लासेस मुतासिर हो रही हैं। लाइट ना होने की वजह से काफी प्रॉब्लम होती है, पानी की प्रॉब्लम होती है, न्यूज कोई सुन नहीं सकते, स्टडी नहीं कर सकते। हमारे घर में लाइट नहीं आ रही, हम पढ़ नहीं सकते। बिजली के इस शदीद बहरान के हवाले से के इलेक्ट्रिक का कहना है कि कराची में शदीद गर्मी के बायस बिजली की तलब बढ़ गई है। वफाकी हुकूमत के मुताबिक के इलेक्ट्रिक को गैस और फर्नेस ऑयल की सप्लाई बिला तातुल जारी है। शहर भर में कुंडों की भरमार भी लोड शेडिंग की एक वजह है। बिजली की तवील और गैर एलानिया लोड शेडिंग से शहरी परेशानी का शिकार हैं और उनका मुतालबा है कि उन्हें फिलफौर इस अज़ियत से निजात दिलाई जाए। हसन नासिर सिद्दीकी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, कराची। दुनिया भर में कोरोना वायरस से मुतासरा अफराद की तादाद 1,12,65,000 से तजावुज कर गई, जबकि 5,30,000 से ज्यादा अफराद हलाक हो चुके हैं। 64 लाख मरीज बीमारी को शिकस्त देकर सेहतयाब हो चुके हैं। दुनिया में कोरोना से सबसे ज्यादा मुतासर होने वाला मुल्क अमरीका है, जहां 29,07,000 अफराद मर्ज से मुतासर हैं, जबकि 1,32,000 अमवात हो चुकी हैं। ब्राजील में हलाकतों की तादाद 63,000 से बढ़ गई है। और नाज़रीन, अर्जेंटाइन में कोरोना वायरस से सेहतयाब होने वाले अफराद ने प्लाज्मा अतिया करना शुरू कर दिया है। सर्द मौसम और बारिश के बावजूद लोगों की बड़ी तादाद ने मुल्क भर में कायम सेंटर्स में प्लाज्मा अतिया किया। लोगों का कहना है कि अगर हम किसी की जिंदगी बचाने में मदद कर सकते हैं तो इससे अच्छा कोई काम नहीं। प्लाज्मा उन तमाम मरीजों के लिए मौसर साबित हुआ है जिनकी हालत कोरोना वायरस के बायस इंतहाई तशवीशनाक है।
उधर शुमाली म्यांमार में मिट्टी के तौदे गिरने से कीमती पत्थर की कान में काम करने वाले 160 से ज्यादा मजदूर हलाक हो गए। चीन की सरहद के साथ रियासत कासिम में शदीद बारिशों से मिट्टी के तोदे गिरे। शदीद बारिशों के बायस एक पहाड़ का कुछ हिस्सा अलग हो गया, जिससे मिट्टी के तोदे कान कनों पर आ गिरे। इस इलाके से अरबों डॉलर के कीमती पत्थर निकाले जाते हैं। ईदगाह शरीफ रावलपिंडी में इत्तेहाद उम्मत कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए मजहबी उमूर के वजीर नूरुल हक कादरी ने कहा कि उलमाए कराम इल्म को फैलाएं और अपना हक अदा करें। नूरुल हक कादरी ने कहा कि इंतशार फैलाने वाले दुश्मन मुल्क के अलाकार बने हुए हैं। पाकिस्तान तमाम मसालिक के लिए इसकी पॉलिसियाँ, यहाँ के रहने वाले जितने लोग हैं, ये रियासत उनकी माँ है और उनके साथ यकसां सलूक करेगी। सज्जादा नशीन साहिबजादा हसन हसीबुर्रहमान ने इस्लाम में फिरकावारियत और इंतहा पसंदी का कोई तसव्वुर नहीं। उन्होंने कहा कि हमारा मुल्क और मजहब ऐसी किसी बात का मुतहम्मिल नहीं हो सकता जिससे फिरकावाराना फसाद को हवा दी जाए। वजीर हवाबाजी गुलाम सरवर खान ने रावलपिंडी आर्ट्स काउंसिल में टाइगर फोर्स की अलफबरदारी की तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि टाइगर्स ने खुद को इंसानी खिदमत के लिए वक्फ किया और कोरोना एसओपीज पर अमल करवाया। उन्होंने कहा कि लाखों लोगों ने अपने नाम टाइगर फोर्स में रजिस्टर्ड करवाए। वफाकी वजीर ने कहा कि टाइगर फोर्स को इंतजामिया और मुंतखब नुमाइंदों का ताउन हासिल रहेगा। कश्मीर कमेटी के चेयरमैन शहरयार आफरीदी ने आजाद कश्मीर के सदर सरदार मसूद खान से इस्लामाबाद में मुलाकात की। मुलाकात में मकबूजा कश्मीर की ताज़ा तरीन सूरत हाल के हवाले से तबादला ख्याल किया गया। सरदार मसूद खान ने कहा कि मकबूजा कश्मीर में हालात तेजी से खराब हो रहे हैं। कश्मीरियों का मावराए अदालत कत्ल रोजाना की बुनियाद पर जारी है। शहरयार आफरीदी ने कहा कि कमेटी मसला कश्मीर के हल के लिए मौसर किरदार अदा कर रही है। उन्होंने कश्मीरियों के हक खुद इरादियत के लिए पाकिस्तान की हिमायत के अज़्म को दोहराया। भारतीय कॉलम निगार और सियासी कारकुन सिंधरा कुलकर्णी ने तारीख का हवाला देते हुए कहा है कि जम्मू के महाराजा ने कभी गिलगित बल्तिस्तान पर हुकूमत नहीं की। मोदी को मुखातिब करते हुए उन्होंने कहा कि गिलगित बल्तिस्तान को फौज के जोर पर हासिल करने का मतलब भारत की तौसीफ पसंदाना सोच है। जब बरतानिया ने 6 जून 1947 को गिलगित बल्तिस्तान को महाराजा हरि सिंह को देने की कोशिश की तो गिलगित बल्तिस्तान के लोगों ने उसे मुस्तरद कर दिया था। सुधेंद्र कुलकर्णी ने कहा कि बीजेपी के 99% वज़रा और अरकान पार्लियामेंट को ये भी नहीं पता कि गिलगित बल्तिस्तान में कौन सी जुबानें बोली जाती हैं या वहाँ के बड़े कस्बे कौन से हैं। उन्होंने कहा कि मोदी मेहरबानी करके तारीख को पढ़ें। गिलगित बल्तिस्तान असेंबली के इंतखाबात के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। तहरीक इंसाफ ने पार्टी टिकट के लिए दरखास्तें और कवायद 11 जुलाई तक तलब कर लिया। कवायद की फराहमी और टिकट के लिए दरखास्त देने का तरीकाकार पीटीआई की वेबसाइट पर मौजूद है। पीटीआई पार्लिमानी बोर्ड दरखास्तों की पड़ताल के बाद उम्मीदवारों का ऐलान करेगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चीफ ऑर्गेनाइजर सैफुल्लाह खान न्यासी ने कहा है कि गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाब खित्ते की सियासी तारीख में नए दौर का नुक्ता आगाज साबित होगा। मारूफ लोक गुलकार अल्लन फकीर को मद्दाहों से बिछड़े 20 बरस बीत गए, लेकिन उनकी आवाज का सहर आज भी बरकरार है। अल्लन फकीर की फनी जिंदगी पर नजर डालते हैं हमारे नुमाइंदे सुहेल जमाली की रिपोर्ट में। अल्लन फकीर का असल नाम अली बख्श था। वो 1932 में सिंध के शहर जामशोरों में पैदा हुए। मखसूस सिंधी पगड़ी और तंबूरा उनकी पहचान था। सूफियाना कलाम के मिसरों पर सुर के साथ लय और ताल उठाने में उन्हें मलिका हासिल था। अल्लन फकीर ने सिंधी, सराइकी, पंजाबी और उर्दू में शाह अब्दुल लतीफ भिटाई, सच्चल सरमस, सुल्तान बाहू, बुल्ले शाह और मुतादिद शोरा का कलाम इस तौर पढ़ा कि सुनने वाले झूम उठे। जमील उद्दीन अली के मिल्ली नगमे इतने बड़े जीवन सागर में तूने पाकिस्तान दिया उन्हें शोहरत की बुलंदियों पर ले गया। अल्लन फकीर को उनके सूफियाना कलाम गाने और इसके फरोग में किरदार अदा करने का 1980 में सदारती अवार्ड से भी नवाजा गया। सुहेल जमाली, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, कराची।
नाज़रीन आगे बढ़े, आपको बताएं कि पाकिस्तान पोस्ट ने बैनुल अक़वामी सारिफीन के लिए EMS प्लस सर्विस का दोबारा आगाज कर दिया है, जिससे बैनुल अक़वामी डाक की जल्द और बरवक्त तरसील मुमकिन होगी। तफसील जानते हैं लाहौर से मोइन सुल्तान की इस रिपोर्ट में। कोरोना वबा की वजह से जहां आलमी मीशत समेत तमाम शोबे बुरी तरह मुतासर हुए, वहीं बैनुल-अक़वामी परवाजों के तातुल से आलमी डाक की तरसील का निज़ाम भी मुतासर हुआ। पाकिस्तान पोस्ट ने सार्फिन को आलमी डाक की तरसील में आने वाली मुश्किलात के पेश नज़र ख़ुसूसी इंतज़ामात को हतमी शक्ल देते हुए सार्फिन के लिए बैनुल-अक़वामी डाक की बरवक्त तरसील को यकीनी बनाने के लिए मुतबादिल ज़राए नक़ल हमल को बरूए कार लाते हुए EMS प्लस सर्विस को फाल कर दिया है, ताकि पाकिस्तान पोस्ट के सार्फिन को किसी किस्म की दुश्वारी पेश न आए। EMS प्लस सर्विस पाकिस्तान पोस्ट ने 2 बैनुल-अक़वामी कोरियर कंपनियों के इश्तराक से शुरू की है, जो इस वक्त 34 ममालिक में अपनी बेहतरीन सर्विसेज फराहम कर रही है। इस सर्विस के तहत मुख्तलिफ ममालिक में 72 घंटों के अंदर डाक की तरसील यकीनी बनाई जा रही है। EMS प्लस बेसिकली पाकिस्तान पोस्ट की नई सर्विस है और काफी फेमस हो चुकी हुई है। इसके रेट्स बहुत रीजनेबल हैं। हमारे पास 2 कंपनीज हैं जिनके साथ हमने मुआहदा किया हुआ है। वो थ्रू देयर फ्लाइट 34 कंट्रीज को हम जो है इस सर्विस के थ्रू डाक की तरसील करते हैं। पाकिस्तान पोस्ट की तरफ से जहां इस बात को यकीनी बनाया जा रहा है कि मुल्क और बैरून मुल्क डाक की तरसील के अमल को जारी रखा जाए, वहीं कोरोना वबा की वजह से SOPs पर अमल दरामद को भी यकीनी बनाया जा रहा है। पाकिस्तान पोस्ट की EMS प्लस सर्विस के आगाज से आवाम को कम कीमत में बैनुल-अक़वामी डाक सर्विस की बेहतरीन सहूलतें हासिल होंगी। मोइन सुल्तान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, लाहौर। रवां साल मुल्क में 11 से 12 लाख टन आम की पैदावार मुतवक्के। मुल्तान का आम मिठास, खुशबू और जायके के लिहाज से पूरी दुनिया में मशहूर है। आम की पैदावार और उसकी वैल्यू एडिशन के हवाले से देखते हैं इमदाद हुसैन की रिपोर्ट। फलों के बादशाह आम की पैदावार के लिहाज से पाकिस्तान दुनिया का चौथा बड़ा मुल्क है। मुल्क की पैदावार का तकरीबन 70% आम मुल्तान, बहावलपुर और रहीम यार खान के बागात से हासिल होता है। मौसमी और लजीज फल होने की वजह से मुल्की और गैर मुल्की मंडियों में इसकी तलब में हर साल इजाफे का रुझान रहता है, लेकिन इस साल मौजूद मौसमी हालात न होने की वजह से बागात पर मनफी असरात मुरतब हुए हैं और ख्याल किया जा रहा है कि कोरोना वायरस के असरात की वजह से इस साल 1 लाख टन के करीब ही आम बरामद हो सकेगा। सिंध की फसल तो अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी अच्छी हुई है, अलबत्ता पंजाब में थोड़ी कम हुई है। पिछले साल 15 लाख टन हुई थी, इस साल लग यही रहा है कि 11-12 लाख टन होगी। इस दफा एक नई बीमारी ने अटैक किया है जिसको बोरर कहते हैं। वो एक स्पॉट की सूरत के अंदर सिंधड़ी, सफेद चौसा और मौसमी चौसा के ऊपर अटैक कर रही है। मौसमी पेचीदगी की वजह से हमें काफी नुकसान हो रहा है और यील्ड भी काफी कम है और फल का साइज भी नहीं बना इस दफा। पाकिस्तान दुनिया का वाहिद मुल्क है जहां 100 से ज्यादा इकसाम के आम पैदा होते हैं। जायके और मिठास के लिहाज से चौसा, अनवर और टोल, सरूली, दुशहरी और लंगड़ा शहर फहरिस्त हैं। मुल्तान का आम न सिर्फ खुशबू और जायके के हिसाब से दुनिया भर में मकबूल है, बल्कि मुल्क की मैशियत में भी अपना किरदार अदा कर रहा है। इमदाद हुसैन, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, मुल्तान। इसी हवाले से मजीद बात करें, आपको बताएं कि पाकिस्तान में फलों के बादशाह आम को लोग मुख्तलिफ तरीकों से खाना पसंद करते हैं। जब किसी गैर मुल्की को सिखाना हो तो आम कैसे खाया जाता है तो लोगों के मशवरे और भी दिलचस्प हो जाते हैं। पाकिस्तान में ऑस्ट्रेलिया के फ्री डॉक्टर जेफरी शाह के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। उन्होंने एक ट्वीट में पाकिस्तानी आम की तारीफ करते हुए कहा कि ऑस्ट्रेलिया में पाकिस्तानी आम की पजीराई बढ़ती जा रही है, लेकिन उनके इतने महज़ब तरीके से आम खाने के अंदाज ने पाकिस्तानियों को ज्यादा मुतासिर नहीं किया। जिसके बाद डॉक्टर जेफरी शाह ने एक ट्वीट में अपने फॉलोअर्स को बताया कि उन्होंने आम खाने का सही तरीका सीख लिया है और साथ ही हाथ से आम खाते हुए अपनी तस्वीर भी शेयर की है। दस्का से ताल्लुक रखने वाले शोएब जमील ने अमेरिका में नेशनल हिस्ट्री डे 2020 के मौके पर मुनाकिदा मुकाबले में पहली पोजीशन लेकर पाकिस्तानी कौम का सर फख्र से बुलंद कर दिया है। ये मुकाबले हर साल अमेरिका में मुनक़िद होते हैं, जिसमें शरीक अमरीकी और गैर मुल्की तलबा मुख्तलिफ प्रोजेक्ट तैयार करते हैं। इस मुकाबले में शोएब जमील ने अपने 3 गैर मुल्की साथियों के साथ मिलकर पहली पोजीशन ली। नाज़रीन, पाकिस्तान कोस्ट गार्ड के गवादर के इलाके कलांच में ऑपरेशन के दौरान भारी मिक़दार में मनशियात कब्जे में ले ली गई। तर्जुमान पाकिस्तान कोस्ट गार्ड के मुताबिक ये कार्रवाई खुफिया इत्तला पर की गई और गवादर के इलाके कलांच में जमीन पर छुपाई गई 1275 किलोग्राम आला क्वालिटी की जर्स बरामद कर ली गई। मनशियात की ये भारी खेप बैरून मुल्क स्मगल होना थी। डायरेक्टर जनरल पाकिस्तान कोस्ट गार्ड ने जवानों की इस अनथक मेहनत और आला कारकर्दगी को सराहा और कहा कि पाकिस्तान कोस्ट गार्ड हर किस्म की स्मगलिंग की रोकथाम के लिए हम वक्त मसरूफ़ अमल हैं।
अस्सलाम वालेकुम। मौसम की कुछ खबरें लिए मैं हूं आपके साथ कासिम अली। आपको आगाह करें कि महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटे के दौरान खैबर पख्तूनख्वा, बालाई और वस्ती पंजाब, शिमाल मशरकी बलूचिस्तान, इस्लामाबाद, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में आंधी और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। इस दौरान कश्मीर, खित्ता पोठोहार और शिमाल मशरकी पंजाब में बाज़ मकामात पर मूसलाधार बारिश मुतवक्के है। आज रिकॉर्ड किए गए ज्यादा से ज्यादा दर्जाए हरारत दादू 48, मोहनजोदाड़ो 47, बहावलपुर और रहीम यार खान में 46 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। आखिर में मुल्क के मुख्तलिफ शहरों के ज्यादा से ज्यादा दर्जाए हरारत की तफसील आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। मौसम का हवाला आप जान चुके हैं, रुख करेंगे खेलों की खबरों का। अस्सलामुअलैकुम। खेलों की खबरों के साथ मैं हूं समी इकबाल। आगाज करते हैं और सबसे पहले क्रिकेट की बात हो जाए। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के हेड कोच मिसबाह हक का कहना है कि खिलाड़ी 3 माह बाद ट्रेनिंग कर रहे हैं और फिटनेस के लिहाज से देखा जाए तो खिलाड़ी फिट महसूस हो रहे हैं। खिलाड़ी बैटिंग और बॉलिंग में भी हमारी सोच से बहुत बेहतर हैं, मजीद प्रैक्टिस से और बेहतरी आएगी। उन्होंने कहा कि इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज से कबल प्रैक्टिस मैचेस बड़ी अहमियत के हामिल हैं और अगले मैचेस में बाकायदा 11 बनाकर मैचेस खेले जाएंगे। 4 रोज की ट्रेनिंग के बाद पाकिस्तान टीम आज वूस्टरशायर में आराम कर रही है। कल पहला 2 रोजा इंटर स्क्वाड प्रैक्टिस मैच खेला जाएगा। कौमी क्रिकेटर हारिस रऊफ कोरोना से छुटकारा ना पा सके। फास्ट बॉलर का तीसरा टेस्ट भी मुस्बत आ गया, जिसके बाद वो मजीद कुछ अरसा क्वारंटीना में रहेंगे। हैदर अली और इमरान खान सीनियर का नतीजा मनफी आया है, जबकि काशिफ भट्टी की रिपोर्ट आना बाकी है। मनफी रिपोर्ट वाले खिलाड़ियों को लाहौर बुला लिया गया है। तीनों खिलाड़ियों के नताइज दूसरी मरतबा मनफी आने की सूरत में उन्हें इंग्लैंड भेजने के इंतजाम किए जाएंगे। और नाज़रीन, वेस्ट इंडीज के खिलाफ पहले टेस्ट मैच के लिए इंग्लैंड ने 13 रुकनी स्क्वाड का ऐलान कर दिया है। इंग्लिश टीम की क़यादत बेन स्टोक्स करेंगे। दीगर खिलाड़ियों में जेम्स एंडरसन, जॉफ्रे आर्चर, डोमिनिक बेस, स्टुअर्ट ब्रॉड, रोरी बर्न्स, जॉर्ज बटलर, ज़ैक ट्रॉली, जो डेनली, ऑली पॉप, डॉम सिबली, क्रिस वोक्स और मार्क वुड शामिल हैं। दोनों टीमों के दरमियान 3 टेस्ट मैचों की सीरीज का पहला मैच 8 जुलाई को साउथहैम्पटन में खेला जाएगा। इसी के साथ स्पोर्ट्स न्यूज से फिल वक्त इतना ही। अब आपको लिए चलेंगे मेन डेस्क की जानिब। बहुत शुक्रिया समी, और इसी के साथ ही बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। सदफ अली खान और रिजवान अली अहमद को हमारी न्यूज टीम के हमरा इजाजत दीजिए। एक ब्रेक के बाद वापस आएंगे हेडलाइंस के साथ। आप पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज के साथ रहिए। पाकिस्तान पर सरहद पार दहशत गर्दी के इल्जामात की गूंज अभी खत्म नहीं हुई थी कि दिल्ली में पाकिस्तानी सिफारतकारों पर जासूसी में मुलव्वस होने के इल्जामात शुरू हो गए। साथ ही साथ कंट्रोल लाइन पर गोलाबारी तेज कर दी गई और इस सब की आड़ में कश्मीरी नौजवानों को शहीद करने की रियासती पॉलिसी को तेज तर कर दिया गया। हर हफ्ते 15-20 कश्मीरी लुक्मे अजल बना दिए जाते हैं और लाशें भी लवाहिकीन को फराहम नहीं की जाती। बहाना कोरोना का है, जबकि खौफ इंसानों के उस समंदर का है जो हर कश्मीरी फर्जंद के जनाजे पर उमड़ आता है। क्या इन हरबों से भारत ये बाजी जीत जाएगा? हरगिज नहीं, क्योंकि तारीख दुनिया यही बताती है कि मसाइल को हल किया जाता है, आंखें मूंद कर कोई मकसद हासिल नहीं हुआ करता। चीन के हाथों दुर्गत के बाद भारतीय मीडिया तिलमिलाहट में अक्ल का इस्तेमाल करना बिल्कुल ही भूल गया है कि चीन को बड़ा भय छा गया है जब से भारत ने कहा है
कि भाई हमारा है जायज इलाका पीओके और गिलगित बाल्टिस्तान और हम इसको वापस लेके रहेंगे। करोड़ों अरबों रुपए चीन ने उस पर लगा दिए हैं अपनी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाने, तो क्वाइट ऑब्वियसली उसको अब पसीना छूट रहा है कि उसकी जो इतनी भारी जो उसने इन्वेस्टमेंट की है उसका क्या होगा। चीन के हाव भाव ठीक नहीं है। चीन की खुद स्ट्रैटेजी सुन त्सू की कहती है कि एक समय में 2, 4, 5 दुश्मनों को के साथ पंगा नहीं लेना चाहिए, और खुद वो इसको जो स्ट्रेटेजिक डिक्टम को फॉलो नहीं कर रहा। पर जीडी बख्शी साहब, यही sun Tzu का प्रिंसिपल ये भी कहता है कि जब आप बहुत कमजोर हो तो दुश्मन को ये बताओ कि तुम बहुत पावरफुल हो। क्या चीन यही तो नहीं कर रहा है? क्योंकि वो बहुत कमजोर है तो अपने आप को पावरफुल बताने की कोशिश कर रहा हो। छल कपट। देखिए, चीन इस वक्त डरा हुआ है। यानी चीन कमजोर है और कमजोरी के बावजूद अगर भारत की दुर्गत बन रही है तो फिर भारत की ताकत का अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं होना चाहिए। बॉर्डर तनाजा चीन और भारत के माबैन पैदा हुआ, जिससे इस झड़प ने जन्म लिया, जबकि जनरल बख्शी इसमें भी पाकिस्तान पर इल्जामात से बाज नहीं आए। पाकिस्तान के 500 टेररिस्ट लॉन्च पैड में तैयार बैठे हैं। पाकिस्तान डेस्परेट है कि किसी न किसी तरह से वो उनको बर्फबारी के पहले बॉर्डर के पार करा दे, ताकि यहाँ पे वो गफलत करें और दुनिया को ये एक तस्वीर पेंट करने की कोशिश करें कि भारत के कश्मीर में गदर हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। इसके लिए वो डेस्परेशन है। भारत ये सब हाथ पे हाथ धरे बैठकर नहीं सहेगा। आई से दैट अगेन, हम इसको चुपचाप नहीं सहेंगे। हमने उड़ी के बाद और बालाकोट के जरिए हमने ये संकेत दे दिया है कि हम प्रोएक्टिव होंगे, हम सीमा के पार पलटवार करेंगे, घर में घुस के मारेंगे। झड़प या क्लैश किसी भी जगह हो, जाहिर है कि आलमी अमन के लिए निहायत मोहलिक है और ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन भारतीय बालादस्ती का खुमार इसकी बुनियादी वजह है। भारत की जो पॉलिसीज हैं बड़ी वाज़ेह होती चली जा रही हैं और उनकी पॉलिसी से इस पूरे खित्ते का जो अमन है, इस्तेहकाम है, वो मुतासिर हो रहा है। आज पहले पाकिस्तान शिकायत किया करता था कि लाइन ऑफ कंट्रोल पे खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं, सीज फायर वायलेशंस हो रही हैं। आज दुनिया देख रही है कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर जो हिंदुस्तान और चीन के दरमियान है, वहाँ तनाज़ा क्यों कर खड़ा हो गया, उसका जिम्मेदार कौन है। भारत जानते हुए कि ये एक मुतनाज़ा इलाका है, एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, 1962 में चीन की और भारत की इस पर चक्रिश हो चुकी है, उन्होंने वहाँ नाजायज़ कंस्ट्रक्शंस का आगाज़ किया और आपने देखा कि वो एक वहाँ जो एक टेंशन है वो सामने आई है और उसका जिम्मेदार भारत है। नेपाल, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका और चाइना सबके साथ भारत के ताल्लुकात खराब हैं। कश्मीरी निहत्ते हैं और भारतीय फौज हर किस्म के असलहे से लैस। निहत्तों को मारकर बहादुरी का दावा नहीं किया जाता। पाकिस्तान को भी गीदड़ भभकियां देना बंद कीजिए और अभिनंदन को याद रखिए। मसले कश्मीर पर बात कीजिए, बढ़ के मत मारिए और ये भी याद रखिए कि कश्मीर कश्मीरियों का है और उनसे पूछे बगैर ये मसला ना आपकी फौज हल कर सकती है ना बढ़ के।